Now, class 11th, we are focusing on the new topic, that is your acid rain. And in acid rain, when will you focus, then you will remember, I think this thing you have already discussed, and just now we have seen there are many gaseous pollutants which are responsible for the cause of the acid rain. Sulfur dioxide we have seen the oxides of nitrogen, and we have seen about the different gases which are responsible, like SO2 is there, NO2 is there, right? So these are the major ones which are responsible for your acid rains. Now you have written just a small diagram that how it has been happening, but let's focus about the first of all about the rains. The rain, that the normal rain that falls, its pH is 5.6 because it contains about carbonic acid in it. But when the pH of the rain water drops from 5.6, अगर 5.6 से नीचे आ जाए तब हम कहते हैं कि that particular rain that is coming is about acid rain. It's that it contains acids in it. So basically how this has been happening, from where these acids are coming to the atmosphere and then they are coming down to the earth surface. So they are, this thing you have to focus. Now I have written few of the, in this diagram you can see that few of the acids are there, right? Like sulfuric acid is there, nitric acid is there. तो हाँ, just see when they are coming in the water जो रेन वाटर है उसका pH is 5.6, तो उससे नीचे हो जाए 5 हो जाए 4 हो जाए 3.5 हो जाए, anything can be happen. तो this way these acids are coming around, like sulfuric acid and nitric acids are coming around. So this leads to, because these acids are there in the atmosphere, और जब वाटर जो आपके रेन क्लाउड्स बन रहे हैं उसमें ही ये एसिड जो है वो कंडेंस हो जाता है, फिर जब रेन आती है तो these acids also come down. Now what you are seeing, that this particular acid when they are coming down, this is just see they are falling on the like ice lands, जितने भी आप ग्लेशियर्स वगैरह हैं या जितने आपके माउंटेन्स हैं, है ना, उससे में आ रहा है तो वहाँ से भी भाई मेल्ट तो होगी ना आइस, तो वो भी डाउन होके अर्थ में ही तो आएगा, चाहे वो सी हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, है ना. अब ये जो बेसिकली यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं एसिड है कहाँ जा रहा है, जैसे ये देखो प्लांट्स में जाए तो वेजिटेशन डैमेज हो जा रही है. अगर ये आपके यहाँ मैंने थोड़ी बिल्डिंग्स बना दी, अगर जैसे जैसे ताजमहल एक बेस्ट एग्जांपल है, तो वो सब लगा दिया मैंने, तो उसमें भी क्या है वो मार्बल्स वगैरह इफेक्ट हो रहा है और आपकी बिल्डिंग्स जो है कोरोटेड हो जाती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, डैमेज होने लगती हैं, ठीक है. बट वन थिंग इज़ दैट फ्रॉम वेयर दीज एसिड्स आर कमिंग अराउंड. अभी हमने कहा कि वी हैव दीज टू गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दे बेसिकली बिकॉज ऑलरेडी योर एटमॉस्फेयर, योर जो इन्वायरमेंट है इसमें वाटर वेपर मौजूद है, तो उस वाटर वेपर से वो कंबाइन होकर दे कन्वर्ट देमसेल्फ टू एसिड्स. नाउ दीज गैसेज दे आर कमिंग, यू हैव ऑलरेडी सीन डिफरेंट वेज, चाहे इनकम्प्लीट फॉसल्स फ्यूल्स हों, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स रहे हों, या फ्रॉम इंडस्ट्रीज रही हों, फ्रॉम automobiles, so these gases are coming out. So these gases are coming out, they combine with the water vapors and that is already present in the atmosphere and they form clouds, and after that they over there they convert themselves to respective acids like sulfuric acid, nitric acid, और फिर जब बारिश पड़ेगी तो वो उन्हीं के साथ नीचे आ जाते हैं, ठीक है. Now we have already discussed about these things, that these gases are coming from incomplete combustion of fossil fuels or burning of fossil fuels, they are there, and after that they leads to oxidation and react with the water and form you the acids. So this way I am just showing you the reaction part also, how these acids are formed. Then it's very harmful. I am again telling you, nowadays acid rain या global warming ये हमारी बहुत ही prominent problems हैं environment की. So we have to focus on that how they are affecting. Now this acid rain is affecting your agriculture, your trees, your plants, because you know they are coming up with the water. तो जो water आपकी lands है, कुछ भी हो, चाहे springs हो, आपके oceans हो, lakes हो, rivers हो, they are also affected. उसके अंदर जो vegetation है वो affect होता है, चाहे वो plant का हो, flora fauna दोनों affect हो रहा है, मतलब plants भी affect हो रहे हैं और animals भी, जिसमें aquatic animals हैं, aquatic plants हैं, वो भी affect हो रहे हैं, ठीक है. अब जब ecosystem disturb हो रहा है वहाँ पे. नेक्स्ट है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ रही हैं भाई, मॉन्यूमेंट्स में आ रही हैं ना, बिल्डिंग्स हैं, आजकल देखा नहीं है वाइट वॉश हम कराते हैं जल्दी ख़राब हो जाता है, पहले टाइम में वाइट वॉश जो हम करते थे काफ़ी साल तक चलता था. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेन कॉज इज एसिड रेन, है ना. मॉन्यूमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, ताजमहल इट्स ऑल्सो इफेक्टिंग, मार्बल वाइट कलर का होता था, इफ़ यू गो दैट मार्बल इज़ वॉट, कैल्शियम कार्बोनेट. सो दिस पर्टिकुलर एसिड इज़ रिएक्टिंग एंड इट्स डैमेजिंग द मार्बल. So it's very important that we have to look through
these things like about acid rains and all that. Now one thing is that diagrams, when we are showing you these diagram, we just want to show you just so that you can understand the concept, but there is no need to draw these diagrams in your answers. When you're writing in chemistry, make sure theoretical portion, and if the reactions are there in the portion, that thing you have to write down. So I think this is clear to you, acid rain. Now let's come to the particulates, pollutants. Now children, let's focus on the particulates, pollutants, one of the important topic. And nowadays in pollution, it's one of the emerging pollutants. You can see most of the work is being done on these particulates, and it's very difficult to remove it, क्योंकि ये सालों साल तक है ना आपके एटमॉस्फेयर में है ना सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, बहुत मुश्किल होता है इनको नीचे है ना लाना. तो बेसिकली दिस पार्टिकुलेट्स आर बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो ये आराम से सस्पेंड करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो दे कैन बी इन द सॉलिड पार्टिकल्स ऑल्सो एंड इवन इन द लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर फॉर्म में. अब ये बेसिकली आते कैसे हैं, जब आप जैसे व्हीकल इमर्शन होता है तो ये कहाँ से आएंगे, आपके कुछ चीज़ें होती हैं जैसे व्हीकल इमर्शन है. ठीक है, जब आप ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलाते हैं तो उसमें से निकलते हैं. फिर स्मोक पार्टिकल्स, और स्मोक पार्टिकल्स काफ़ी सालों साल, जब आप लोग जैसे आप दिवाली आती है, दशहरा आता है, आप लोग बहुत ज़्यादा पटाखे चलाते हैं, तो वो उसमें से जो निकलती हैं गैसेस तो निकल ही रही हैं, बट पार्टिकुलेट्स आर ऑल्सो देयर एंड यू विल सी द एनवायरनमेंट. आपको जब ये फेस्टिवल्स इस तरह के ख़त्म होते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर बिल्कुल आसमान में जो ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है. तो व्हाट आर दीज आर द पार्टिकुलर्स दैट आर सस्पेंडिंग इन द एटमॉस्फेयर. तो बहुत टाइम लगता है इनको जाने, मतलब ये इतना, इनकी लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा होता है कि कई सालों तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं. ठीक है, आप जैसे बिल्डिंग्स बनाएंगे, आप पत्थरों की जैसे लोग बागे ना पत्थरों की घिसाई करते हैं, तो उसमें भी जो पार्टिकल्स निकलते हैं बेसिकली पार्टिकुलेट्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर को बहुत पॉल्यूटेंट करते हैं. ठीक है, पॉल्यूटेड करते हैं. तो दिस मोर पार्टिकल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम फायर्स और डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, एंड ऐश फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, तो उसमें से ये पर्टिकुलेट्स जो हैं वो निकलते हैं. ये पर्टिकुलेट्स जो होते हैं दे कैन बी वायबल और नॉन वायबल. मीन्स वायबल पार्टिकल्स वो होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल्स, इसको समझ लो, मैं समझाती हूँ. particulates may be और नॉन वेव. ठीक है, अब इसका क्या होता है, जैसे ये दो क्लास हमने क्लासिफिकेशन पर्टिकुलेट्स की करती हैं. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन मीन्स पर्टिकुलेट्स वैल्यूबल वो होंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगस, माउंट्स, एल्गी, इन सबको इसमें रखा जाता है. ठीक है, नॉन वैल्यूबल उनको क्लासिफाइड करा जाता है उनके नेचर और साइज़ के हिसाब से. तो नेचर और साइज़ के हिसाब से कई तरीके के हो जाते हैं. ठीक है, इसमें जैसे इसमें आप क्या रखोगे, बैक्टीरिया हैं आपके, एल्गी हैं आपके, फंगस हैं. ठीक है, माउंट्स हैं, इनको रखते हैं आप. ठीक है, और इधर आप नॉन वेलेबल, ये डिपेंड करेगा, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, नेचर एंड साइज. नेचर और साइज़ पार्टिकल का कैसा है, तो ये कई तरीके के हो जाते हैं. जैसे स्मोक है आपका, ठीक है, डस्ट है, बुक्स में बहुत डिटेल में दिया रखा है, मिस्ट है. ठीक, और फ्यूम्स आपको दिखते हैं, और भी हैं आपके, मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं. तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, लाइक वी आर टॉकिंग ऑन दिस थिंग. इसमें तो इतना कोई इशू नहीं है, इसमें इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइए क्योंकि देर आर थिंग्स विच आर न्यू टू यू ऑल्सो एंड सम आर ओल्ड ऑल्सो. लाइक स्मोक पार्टिकल्स आपको मालूम है, जब जब हम मना करते हैं ना बार बार आप लोगों को, बेटा सूखे पत्ते पेड़ मत जलाओ, लेकिन लोग जलाते हैं, कचरे को जलाते हैं, गार्बेज को यू आर बर्निंग. फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, आप वुड जला रहे हैं, या आप है ना पेट्रोल को लेके उनकी चीज़ों से जला रहे हैं ना, प्लास्टिक जला रहे हैं. तो दीज आर यू शुड नॉट बर्न ऑल दीज थिंग्स. तो बेसिकली जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ सॉलिड or a mixture of solid and liquid particles. They are formed by the combustion of organic matters, and we have discussed about it, like you're burning of fossil fuels or garbage or dry leaves or oil, smoke, है ना, उन सब से ये स्मोक जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पर्टिकुलेट्स से जनरेट होते हैं.
नाउ डस्ट, यू आर क्लियर विद दिस डस्ट पार्ट, दे आर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और इनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, म्यू में 1 म्यू मीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग, मैंने अभी बताया कि आप जैसे सॉलिड मटीरियल्स को, जैसे लोग बाग क्या करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं ना या घिसते हैं, तो उसमें क्या है, पार्टिकुलेट्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, या सॉ डस्ट हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द सॉ डस्ट फ्रॉम द फ्लाई ऐश फैक्ट्रीज है, वुड वर्क्स हैं, कोल है, सीमेंट है, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, इन सब में ये आपके डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। लाइक मिस्ट, अब मिस्ट में जैसे स्प्रे लिक्विड्स आप यूज़ करते हैं बाय कंडेंसिंग वेपर्स इन एयर, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स। लाइक हर्बिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपने ना ये मिस्ट ही तो हुआ कि आपने वो लिक्विड स्प्रेज हैं जो आप छिड़क रहे हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, है ना। अब रूम फ्रेशनर तो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन आप उसमें उसी चीज़ को समझिए, आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स तो आपने लिक्विड फॉर्म में देखा है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट है, तो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द योर दिस थिंग particulates, they come in particulates. Then fumes are generally obtained by like condensations of vapors during sublimations, distillations, boiling and several other chemical reactions. But the chemical, ये नहीं कि मैम ने तो sublimation हमें पढ़ाया था या मैम ने हमें distillation पढ़ाया था, boiling point पढ़ाया था पानी का, तो उससे हो जाएगा fumes में। वाटर वेपर की एक अलग कंडीशन, लेकिन अब यही है, केमिकल्स आप यूज़ करते हैं, यू आर यूजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उनको नहीं सब्लिमेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, मेटल्स का नहीं होता है। मेटल्स को भी तो आप मेल्ट करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आते हैं, फ्यूम्स, तो दे फॉर्म फ्यूम पार्टिकल्स। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज आर दे बेसिकली, ये जो एयर बॉर्न पर्टिकुलेट्स होते हैं, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, मिस्ट है, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है इनको रिमूव, क्योंकि ये इतना इफेक्ट करता है कि आपकी आरबीसीज वगैरह पे भी, आपके डेवलपमेंट में, आपकी बॉडी की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। दे आर वेरी हार्मफुल, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसी इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं और आपके अंदर जो आरबीसी की मैच्योरिटी वगैरह, उनके डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट करेगा। आपको आजकल देखा नहीं है, हम लोग फाइट नहीं कर पाते हैं बीमारियों से, हमें घर में बीमारियाँ इतनी नहीं हैं, है ना। देर आर नो दीज थिंग्स, वी आर मेकिंग आर हाउस क्लीन, बट द इन्वायरमेंट इज कंटेनिंग लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट दे आर अफेक्टिंग यू। जैसे कैंसर है आजकल, कोई कुछ लोग कहते थे पहले कि लोग बाग पीपल आर ड्रिंकिंग देन ओनली दे आर हैविंग कैंसर, बट यू हैव सीन इन दिस चैप्टर के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें कितनी एक ये भी पॉल्यूशन भी जो है कैंसर के लिए, लोगों को अस्थमा हो रहा है या पीपल आर फेसिंग डिफरेंट लंग डिजीजेस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। मतलब भले ही हम आज वी आर इन द एरा व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, बट times we should use these masks from the previous state also, but we are not using that. So these things is very harmful. I think this is clear to you, this concept. So this way you can have your point in this thing, your particulates. I think it's been clear to you. Now we have a new topic in it, that is smog, and we'll focus on the smog, that what is a smog. Smog is basically a mixture, it's very important, it comes in the examination. Smog is a mixture of smoke तो आपको क्लियर हो ही गई है, एंड फॉग, ठीक है। सुबह सर्दियाँ आ रही हैं, फॉग आएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस इज़ अ मिक्सचर एंड इज़ वन ऑफ द कॉमन पॉल्यूटेंट। से पहले हम लोग सर्दियों में उठते थे तो बड़ा अच्छा लगता था देखना, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। when you come in the winter season, then you will see that the environment, you are seeing the blackish, all the blacks are there, fog होता है, और हमें पहले बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ, उससे जो गर्मियों में पॉल्यूशन है उससे कई गुना ज़्यादा हाई रेट पॉल्यूशन है in case of now children, as we have already discussed about the smog, so they are also classified into two parts, like classical smog, which is also known as reducing smog, photochemical smog, which is also known as oxidizing smog. Let's come about the classical smog, that what it's been there and how it's been occurred. So if you talk about the classical smog, they occurs because of cold, humid climate, or coal. I'm not talking about cold, it's coal, COAL, humid climate, and it's a mixture of smoke and fog and sulfur dioxide. So it is a reducing mixture, and that's why it's known as a reducing smog. But when you talk about the photochemical smog, they occurs in warm, dry and sunny climate. यानी देखो दोनों smog है, सर्दियों में ये होगा
बेसिकली जो कि कोल के रिलेटेड होता है ना, क्योंकि फॉग आपको आ जाता है। और यहाँ पे ये आप इसको कह सकते हो कोल्ड, बोलो कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशन है। और ये आपका ड्राई सनी क्लाइमेट्स में या वार्म कंडीशन में अकर होता है। ये ज़्यादातर जैसे ये अराइज होता है आपके एक्शन ऑफ सनलाइट एंड ऑन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि आप जानते हो ऑटोमोबाइल्स आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, और आपका फैक्ट्रीज से निकल रही हैं, तो वहाँ से आपको ये स्मॉग जो है वो अराइज होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। सो इट्स क्लियर हाउ दीज टू स्मॉग्स इज डिफ्रेंशिएटेड टू ईच अदर, बट नाउ वी विल फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। एंड बेसिकली देखो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है, आपको देखा है इसकी अराइज होता है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, तो इसमें यहाँ तक कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली अभी हमने देखा एक चेन रिएक्शन चलती है इसमें, और इसका सनलाइट वगैरह के थ्रू सारा काम चलता है। इसमें आपके पास ये तभी राइज होगा जब हाई कॉन्सेंट्रेशन आपके पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो NO जो होता है वो अपने आप को NO2 में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में यही जो NO2 होता है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में और फ्री ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैसे होता है, जैसे ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में NO2 होता है, ये तभी है जब आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 गैस हो रही है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, भैया नाइट्रिक ऑक्साइड पहले NO2 गैस में अपना कन्वर्ट हो जाती है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भाई सनलाइट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और अपने आप को जो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो ये ब्रेक होके नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैस है, और साथ में एक ऑक्सीजन जो कि आपका फ्री ऑक्सीजन एटम है उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपन, दिस फ्री ऑक्सीजन या कह सकते हो नेसेंट ऑक्सीजन जो अवेलेबल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, ये आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, उससे ये जाके कंबाइन कर जाता है और ये आपको ओजोन बना लेता है जो कि गैस है। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स बीन फॉर्मिंग, ये एक ओजोन बना ले रहा है। आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है। अब ये जो ओजोन जो फॉर्म्ड हुआ है ये, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो ओजोन के साथ कंबाइन कर जाता है, और ये दोबारा से NO2 प्लस O2 गैस बना, मतलब ये दोबारा से रीजनरेट कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, जो कि कैसी थी आपकी एक ब्राउन गैस, या आप कह सकते हो रेडिश ब्राउन गैस जो है वो आपको लिबरेट अप करता है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये देख रहे हो कि आपने जो NO2 से शुरुआत करी है, लेकिन अब जो NO2 जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है उसका लेवल बहुत हाई पहुंच चुका होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और ये गैसेस जो है मतलब ऑक्सीजन और सॉरी ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, एंड दे आर वेरी पॉइजनस, एंड पॉइजनस के टॉक्सिक गैस होती हैं। ठीक है, और फर्दर क्या होता है, ये जो है जो आपके जैसे इन्वायरमेंट में भाई इनकम्प्लीट कंबशन होता है, हाइड्रोकार्बन हर तरह पूरी तरह से तो बढ़ता नहीं, इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है या अनबर्न हाइड्रोकार्बन से, उनसे ये रिएक्ट कर जाता है और बहुत से ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बना लेता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, या पेन है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये सब बना लेता है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है। तो इस तरह से ये चेन पूरी चलती है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बेसिकली कौन कौन सी गैस, ओजोन और NO2 कैसी हैं, टॉक्सिक गैस होती हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, और दे क्या करते हैं ये लोग, दे रिएक्ट्स विथ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन द polluted air to produce chemical like फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक्रोलिन, ये भी बहुत पहले इसका एक्सपेरिमेंट चलता था, बैन हो गया है क्योंकि ये पॉइजनस होता है और काफ़ी दिक्कतें देता है। पर ऑक्सी यहाँ लिख लेना, इसमें एसिटाइल नाइट्रेट एक साथ लिखना है इन्हें, पेन। तो आई थिंक वी हैव कवर अप विद दिस पार्ट। दिस फोटो केमिकल स्मॉग हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स
it's give a very serious problem in your health issues are there. Irritation in your eyes is there, and your irritation in nose and जैसे ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप देखें तो ये नोज़ और थ्रोट पे इफ़ेक्ट करते हैं. बहुत हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा तो हेडेक होने लगता है, चेस्ट पेन है, ड्राइनेस हो जाती है थ्रोट में, कफ में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को. अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ों में देखें तो आपके मेटल्स जल्दी से करोड हो जाते हैं, स्टोन्स ख़राब होने लगते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स ख़राब हो रही हैं, रबर है जल्दी ख़राब हो जाता है, पेंटेड जो सरफेसेस होते हैं आपने पेंट करा हुआ है किसी फर्नीचर वगैरह में वो ख़राब हो जाता है, प्लांट्स और जो प्लांट लाइफ है वो भी डैमेज होती है. तो इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. वी डोंट नो, वी आर लिविंग इन एन एरा, इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ हाईली पॉल्यूटेड, बट वी डोंट नो. हम में कहते हैं अरे अभी तो हमने वाइट वॉश कराई थी, अभी तो हमने पेंट करा था, कुछ भी नहीं करा, रखे रखे ख़राब हो गया. कैसे ख़राब हो गया? बिकॉज द इन्वायरमेंट विच वी आर लिविंग, द इन्वायरमेंट विच वी आर लिविंग, इट्स हाईली polluted. So I think this is clear to you. Please focus on it. It's a very important topic. Particulates and smog, photochemical smog, they are very important. So you have to learn them.